वेलकम टू एवरीवन। आज आईटी टॉक्स व आईटी वर्क के स्पेशल एपिसोड में हम बैठे हैं डॉक्टर प्रशांत सक्सेना सर के साथ। सर हैज बीन एन एक्सपर्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी फॉर मोर देन 15 years. सर holds a doctoral degree in cyber laws. सर कैन यू प्लीज टेल आवर ऑडियंस व्हाट मोटिवेटेड टू जॉइन दिस फील्ड और साइबर सिक्योरिटी में ऐसा क्या है, आपने क्या देखा है इस इंडस्ट्री में इवॉल्व होते हुए इन द लास्ट 15 years, एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना कि मैंने ट्रांजिशन देखा, आई हैव सीन द ट्रांजिशन। आई हैव स्टार्टेड माय करियर विद टेक महिंद्रा इन 2008. तो that was a private entity. Then I moved to the government. From last 14 years I'm into the government. So there is a huge transition that I have seen. The transition which has started from the network engineering, the transition which has started from the application engineering, and today we are seeing the era of artificial intelligence. In the era of artificial intelligence, cybersecurity is playing a pivotal role. So there is a huge transition that is everybody seeing, and definitely now cybersecurity is not a buzzword. It's a very important area that we need to take care of. Even government is also focusing a lot into the cybersecurity domain. सर बिल्कुल आपने सही बताया कि साइबर सिक्योरिटी ऐसा डोमेन है जो इवॉल्व हो चुका है और अब सबकी जुबान पे है। डिजिटल वर्ल्ड में आ चुके हैं हम, जी। डिजिटल स्कैम्स हो रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी नेसेसिटी ऑफ द आवर हो चुका है। सर तो थोड़ा आप हमारे ऑडियंस को बताएंगे सर, साइबर सिक्योरिटी जो एक बजवर्ड है जैसा आपने बताया, तो साइबर सिक्योरिटी सर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे साइबर सिक्योर बन सकती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अब बाकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं। तो पहले थोड़ा बताइए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या, आपका क्या रोल है, थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं, और देन विल टॉक अबाउट हाउ वी कैन कीप ईच वन ऑफ अस साइबर सिक्योर। डेफिनेटली। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आई वर्क फॉर राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, which is a government entity and taking care of the entire electricity transmission in the state of Rajasthan. And I'm also closely associated with the various ministries at the national and at the state level. तो the important area that is important कि साइबर सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल अलग है, और साइबर सिक्योरिटी फॉर द प्राइवेट पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल अलग है। पर्सपेक्टिव में अंतर क्यों है कि इन द प्राइवेट सेक्टर people are wishing to protect their assets, but into the government sector the state nation actors, I don't want to name the nations, but there are certain nations who want to destroy our assets, who want to theft the data from our entities, because India is a growing nation, okay, because under the leadership of the prime leadership of the Mananiya Narendra Modi ji, the nation is growing at a very faster pace. So there are a lot of developments. If you see in the COVID times, so we are the one who has developed the vaccine at the very first phase. So at the very specific moment, you can see the number of cyber attacks has grown exponentially, because they want to take the you can say the recipes, or you can see the formulation for the vaccines. So there are a lot of things. So for the governments protecting the assets, and also in perspective to the my organization, I would like to say that electricity is the backbone for the nation. Without electricity you cannot think even for a minute. Even without electricity you can't conduct this interview. So the important fact is that the state nation actors, the anti nation people want to make the systems down, make the grids down. And once they are able to make the grid down, even if they are able to shut down a particular network, maybe some Badmer Jaisalmer line or something, so you can not even see the impact can be lot of jeopardy effect, because one nation, one state can impact the other state also. If you remember the Bombay electricity crisis a few years before, in which there is a malware, there is a Chinese malware which is being detected. So that is a Mumbai power cyber attack. And I want to mention here that due to that, 4 states have been impacted. So there is a huge impact on the electricity if we talk on the various issues. So these are the important areas that I want to cover on right now. So talking about on the lines of COVID, to tell our audience, sir has authored a book, Cyber Security: The Fourth Dimension in the Post-COVID World. Yeah. सो सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साइबर सिक्योरिटी फोर्थ डिमेंशन कैसे हो सकता है इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। हमने बिल्कुल देखा कि डिजिटल इंपॉर्टेंस तो है, और आपने बताया मुंबई साइबर टॉक से कितना फर्क पड़ गया, बट इस बुक क्या हो सकता है मेरे ऑडियंस को। बिल्कुल। कोविड का जो टाइम था उसमें सिक्योरिटी ने एकदम से हाइप मारा।
साइबर सिक्योरिटी अगर आप देखें तो बनता है नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड जो आपका डेटाबेस सिक्योरिटी। बट ओवर द टाइम क्या हुआ कि कोविड का जो एरा था उसमें वर्क एट होम बढ़ा, है ना, पीपल स्टार्टिंग वर्किंग फ्रॉम देयर रिमोटली। तो वो जो रिमोट वर्किंग हुई, पीपल ने घर से काम करना चालू करा, तो देयर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दी साइबर सिक्योरिटी। वहां से एक नया इवोल्यूशन डेवलप हुआ। तो उसी चीज को मैंने थोड़ा सा इन्फर करा कि क्या क्या चीजें हैं जो कि लोगों को समझनी चाहिए। तो मैंने ये एक बुक राइट करा, द फोर्थ डायमेंशन इन साइबर सिक्योरिटी। तो जो हम थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड देखते हैं, तो ये बिल्कुल एक अलग ही डायमेंशन है कि हम किस तरीके से हमारी जो चीजें हैं उनको सुरक्षित कर सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ये सब चीजें मैंने इस बुक में लिखने की कोशिश की है। बिल्कुल सर, साइबर सिक्योरिटी लोगों को लगता नहीं है, बट हमारे बैकग्राउंड में चीजें हो ही रही होती हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि ऐसा हो रहा है। सर, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, सर, बेस्ड ऑन योर वर्क विद द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, व्हाट यूनिक साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस डू द गवर्नमेंट एजेंसीज फेस एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस? मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक बैकग्राउंड दूंगा एक इंसिडेंट का। मैं ऑर्गेनाइजेशंस के नाम नहीं लूंगा इस समय, बिकॉज देर आर सम सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस टू बीइंग इंटू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। बट वी हैव डिटेक्टेड अ साइबर अटैक फ्रॉम अ सर्टेन कंट्री इनटू आवर ऑर्गेनाइजेशन, एंड the attack was not matured, but there is certain malicious communications which are happening from our organization to certain countries. तो वहाँ से शायद मेरी फॉरेंसिक करियर की स्टार्ट हुई। इट्स लाइक 5-6 years बिफोर। तो वहाँ से मेरे फॉरेंसिक करियर की स्टार्ट हुई, और we are very new to this area actually. Cyber security I am having a 14 year of experience, बट फॉरेंसिक्स में देखिए क्या होता है ना कि डिजिटल फॉरेंसिक्स, या यूँ कह लीजिए कि आपको किसी का पोस्टमार्टम करना है तो उसके लिए एक डेड बॉडी चाहिए। तो इसी तरीके से इफ यू वांट टू डू सम डिजिटल फॉरेंसिक्स, यू नीड लॉट ऑफ एविडेंसेस, यू नीड टू हैव सर्टेन एरियाज व्हिच इज हैविंग सर्टेन मैलिशियस कम्युनिकेशंस। तो वहाँ से मेरा सेल्फ लर्निंग स्टार्ट हुआ। सो अगर मैं DFIR की बात करूं, डिजिटल फॉरेंसिक इंसिडेंट रिस्पॉन्स की, तो आई एम अ सेल्फ लर्न पर्सन, एंड आफ्टर दैट गवर्नमेंट ने मेरे को काफ़ी हेल्प करा, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसमें लगभग भारत की सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के 2-3 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और मुझे वहाँ मौका मिला मुझे स्टेट को रिप्रेजेंट करने का। तो वो सारी चीज़ें रहीं। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन गांधीनगर, उनके जो टॉप नॉच फैकल्टीज थे, दे हैव ट्रेंड मी। तो इस तरीके से काफ़ी इवोल्यूशन हुआ। मल्टीपल एरियाज, मल्टीपल डोमेन्स में मैंने लर्निंग करी। इट्स नॉट अ सिंगल डोमेन, अ सिंगल डे आई हैव लर्न कोई मैंने कोर्सेज, नो, आई एम नॉट फोकसिंग दैट मच ऑन द सर्टिफिकेशन कोर्सेज। बट जो गवर्नमेंट ने मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी लर्निंग की, और मैंने भी उसको रिटर्न करा मेरी लर्निंग्स के थ्रू, मेरी स्किल्स के थ्रू। और नाउ आई कैन से दैट फ्रॉम द लास्ट 2 years वी हैव नॉट फेस्ड अ सिंगल अटैक। So that's amazing that we are in safe hands. हाँ। सर, आपने बताया डिजिटल फॉरेंसिक और इंसिडेंट रिस्पॉन्स के बारे में, तो सर व्हाट कोर स्किल्स आर एसेंशियल फॉर पीपल और प्रोफेशनल्स हु आर लुकिंग टू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ DFIR? देखिए, whenever we talk about digital forensics, the important area is that कि आपको सबसे पहले तो बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप डिजिटल फॉरेंसिक्स में कभी भी सक्सेसफुल नहीं है। अगर बेसिक्स के बारे में बात करें तो जो आपके सिस्टम्स होते हैं, योर सिस्टम कैन बी योर लैपटॉप, योर, बिकॉज देखिए ना, DFIR का मेन काम क्या है कि एविडेंस को एक्सट्रैक्ट करना है, और एविडेंस एक्सट्रैक्ट करते हुए वो जो एविडेंस है वो कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, बिकॉज जो चेन ऑफ कस्टडी है दैट इज टू बी केप्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने चेन ऑफ कस्टडी को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करा तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करें। चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करने के लिए अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज पे काम कर रहे हैं, लिनक्स पे काम कर रहे हैं, मैक ओएस पे काम कर रहे हैं, इवन आजकल स्मार्ट वॉच की फॉरेंसिक्स आ गई। तो चीजें इवॉल्व हो रही हैं, द थिंग्स ऑल इवॉल्विंग ऑन अ वेरी रैपिड पेस, और हमें समझना पड़ेगा कि बच्चे क्या गलती कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि दे आर जस्ट रनिंग फॉर सम सर्टिफिकेशंस, दे आर जस्ट रनिंग फॉर सम कोर्सेज। नहीं, आप करिए, सर्टिफिकेशंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे विल हेल्प यू टू लाइक प्रूव दैट यू हैव सर्टेन स्किल। कोर्सेज भी कीजिए,
बट साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप बेसिक्स पे काम कीजिए। जैसे आप नेटवर्क फॉरेंसिक्स पे काम कर रहे हैं, तो नेटवर्क फॉरेंसिक्स में आपको टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल, टीसीपी, यूडीपी, आपको बेसिक्स चीजें नहीं पता है। मैं कई बार बच्चों से मिलता हूँ, कई प्रोफेशनल से मिलता हूँ, तो दे आर लैगिंग समवेयर ऑन द बेसिक्स। तो बेसिक्स पे फोकस करें। और देखिए, एप्लीकेशन फॉरेंसिक्स एक एरिया है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फॉरेंसिक्स एक एरिया है, नेटवर्क फॉरेंसिक्स है, उसके बाद आपका डिवाइस फॉरेंसिक्स, हार्डवेयर फॉरेंसिक्स, तो मल्टीपल एरियाज हैं डीएफआईआर के अंदर। तो एज पर दी चॉइस आप मूव कर सकता है कोई भी स्टूडेंट उसके अंदर। सर आपने बिल्कुल सही बताया कि सर्टिफिकेशन जो होते हैं वो तो क्रेडिबिलिटी के लिए होते हैं, बट इंसान को नॉलेज पे फोकस करना चाहिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रिगार्डिंग है। मैंने सुना है कि आईटी तो सर सब जानते हैं, आईटी का सब बात भी करते हैं, बट सर ओटी भी एक टर्म होता है और ये बिल्कुल। साइबर सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओटी क्या होता है सर? देखिए, जब भी हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, तो आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओटी मीन्स ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी। तो देखिए, आईटी आपका जो सर्वर पे डेटा रन कर रहा है, इट इज आईटी। बट अगर आप उस डेटा से किसी प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, इट बिकम्स ओटी। डेटा इज आईटी, एंड व्हेन यू यूज दैट डेटा टू रन सर्टेन थिंग्स, जैसे आज हमारे स्काडा एनवायरनमेंट की बात करें, या आप किसी प्रोसेस ऑटोमेशन की बात करें, कि जैसे ही 30 डिग्री से ऊपर मेरा बॉयलर का टेम्परेचर जाएगा, तो मेरा बॉयलर ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो रिले ऑपरेट करेगी बैकएंड में, दिस इज कॉल्ड ओटी। तो ओटी इज समथिंग, आप ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, आप एआई की तरफ जा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कंप्लीट ऑटोमेशन की, हम ह्यूमन लेस चीजें कर देंगे, तो वहां पे आईटी तो करेगा ही करेगा। आईटी विल गिव यू दी डेटा सपोर्ट, बट जो ऑपरेशनल एरिया है, दैट विल ओनली कैन बी डन थ्रू दी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी। तो अभी ग्लोबली अगर हम देखें, तो आईईसी 62443 इज द स्टैंडर्ड विच इज टॉकिंग ब्रॉडली ऑन टू द ओटी एनवायरमेंट्स, ऑन द ओटी सिस्टम्स। आईटी के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। वी हैव ISO 27001, वी हैव NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, वी हैव COBIT, वी हैव a lot of framework, but for OT there are little very less frameworks. Also, if I talk about the number of experienced person, there are around 90% people who are trained in OT, and only 10% in the 90% in OT and 10% in the OT side. So there is a huge potential for the students or the professionals who want to make their career into the OT side. सर जैसे आपने बताया, ओटी सिक्योरिटी इज वेरी क्रिटिकल इन सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी, क्योंकि ऑटोमेशन Definitely. वहां ज्यादा रन होते हैं। सर हाउ डिफरेंट इज सिक्योरिंग ओटी सिस्टम इन कंपैरिजन टू आईटी सिस्टम्स? देखिए, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द आईटी एंड ओटी, आईटी इज टेकिंग लॉट ऑफ अपडेट्स। आईटी में हमको अवेलेबल रहेंगे अपडेट्स। अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें, विंडोज के, या आप अगर एंड्रॉइड का या एप्पल का मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हर 15-20 दिन में एक आपको अपडेट मिल जाता है। बट ओटी सिस्टम में जनरली ऐसा नहीं होता। दे आर यूजली वंस डिप्लॉयड गो फॉर 7 to 8 years विदाउट इवन अ सिंगल अपडेशन। सेकेंड थिंग क्या है कि आईटी में आप सपोज कीजिए आपके पास डेल का लैपटॉप है, आप उसमें एप्सन का प्रिंटर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट ओटी में इंटरऑपरेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है। अगर मेरा HMI एक सीमेंस का है, तो प्रोबेबली मेरा जो DCS है वो मैं शिनाइडर का नहीं लगा पाऊंगा। तो जब ये इंटरऑपरेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है कि जो अपडेशन है वो पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ से इन चीजों की इवॉल्वमेंट चालू होता है। तो सर मतलब बहुत बेसिक सवाल होगा शायद, बट आईटी में तो एंटीवायरस मिल जाता है हमें, जी। तो ओटी में कोई एंटीवायरस नहीं आता? सर ओटी में जनरली एंटीवायरस नहीं आते हैं, ओटी के लिए एंटीवायरस नहीं आते हैं। बट ओटी में हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस की। अगर आपने प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर करा है, आपका ऑथराइजेशन प्रॉपर्ली है, आपका एक्रेडिटेशन प्रॉपर है, अगर आप ढंग से एक्रेडिटेड बॉडीज के उसमें फ्रेमवर्क्स यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन सेफगार्ड योर ओटी आल्सो। बिल्कुल सर, आपने मतलब बहुत इजीली समझा दिया कि ओटी और आईटी में क्या डिफरेंस है। सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ सेक्शन, सर आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? आपने बताया कि आप बहुत बिजी हैं, आपका रूटीन भी बहुत स्टिफ है, बट मैं जानना चाहता हूँ कि सर थोड़ा बहुत पर्सनल नोट, आपने फ्री रूटीन टाइम में क्या करते हैं? देखिए, आई एम पैशनेट अबाउट साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम लास्ट 10-12 ईयर्स। तो मेरे को एक गैप लगा सोसाइटी में, देयर इज अ बिग गैप कि ट्रेंड मैन पावर नहीं थी, एंड जो लोग ट्रेनिंग ले भी रहे थे, दे आर नॉट डायरेक्टेड इन अ प्रॉपर नोट। तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव एस्टैब्लिश्ड अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी स्टडीज एंड रिसर्च। तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड वी आर गिविंग एंटायरली फ्री कोर्सेज, free trainings, free internships to the people who really wish to learn the cyber security from the very scratch.
So currently, we are operating in around 48 countries. Currently, we are operating in 48 countries, and we have trained around more than 10,000 people globally. तो अभी फ्री टाइम में तो सारा फोकस जो मिलता है, तो या तो अब ऑर्गेनाइजेशन के जो स्किल्स हैं उनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी काफ़ी मैन पावर है, तो उनका भी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करता हूँ। और साथ साथ जो मेरे जो जो स्टूडेंट्स हैं या कह सकते हैं जो मेंबर्स मेरे इस एनजीओ के संग जुड़े हुए हैं, थोड़ा उनको ट्रेन करता हूँ। ये सर बहुत बड़ी बात है कि आपने तो अपना लाइफ भी साइबर सिक्योरिटी डेडिकेट कर रखा है, फ्री टाइम में भी और वर्क टाइम में भी साइबर सिक्योरिटी ही चल रहा है। तो सर ये जो आपने बताया सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी स्टडीज एंड रिसर्च, सर इसका कोई मेन फोकस एरिया है, रिसर्च एरिया है? जैसे डिजिटल फॉरेंसिक्स आपने बताया, जैसे आपने बताया इंसिडेंट रिस्पॉन्स, तो इसमें क्या क्या मिल सकता है? Basically, the core area that we are focusing at CFCS2R is that is DFI, Digital Forensics. बिकॉज अभी गवर्नमेंट के भी कुछ मैंडेट्स आए हैं। अभी रिसेंटली अगर आपने कल ही पढ़ा होगा कि इंडिया में 5,000 साइबर वॉरियर्स, साइबर कमांडोज डेवलप करे जाएंगे। तो द कमांडोज विल बी टेकिंग द ट्रेनिंग फ्रॉम द टॉप नॉच इंस्टीट्यूट, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। कुछ IITs भी इसमें आगे आ रहे हैं। तो वी वांट टू आल्सो कंट्रीब्यूट विद देम कि गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स हैं ट्रेनिंग चैलेंजेस को लेकर हम उसको कंट्रीब्यूट करें। करेंटली भी हम लोग कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के संग एसोसिएटेड हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनके जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो कर रहे हैं। साथ साथ जो डोमेन है, मेजर डोमेन हम लोग फोकस करते हैं, एक तो रेड टीमिंग है, एक हम लोग ब्लू टीमिंग पे काम करते हैं, VAPT असेसमेंट्स और ISO ऑडिटिंग एंड कंटेंट डेवलपमेंट फॉर द पीपल हु आर न्यू टू द साइबर सिक्योरिटी। साथ साथ डिजिटल फॉरेंसिक्स पे भी हम लोग अभी काफ़ी काम कर रहे हैं। तो हम लोग बूट कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्रेनिंग्स भी हम लोग काफ़ी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये एरिया हम लोग अभी करेंटली कवर कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। सर बहुत ही अच्छा लगा सुन के, मैंने तो आज बहुत कुछ सीखा। सर एनी वन लास्ट मैसेज दैट यू वुड वांट टू लीव विद आवर ऑडियंसेस टू कीप देम सेफ एंड सिक्योर इन द अपकमिंग डिजिटल वर्ल्ड? क्योंकि चीजें तो आपने बताया ही रैपिडली इवॉल्व कर रही हैं, तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि ऑडियंस भी अपडेटेड रहे, जागरूक रहे। बिल्कुल। तो कुछ लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए? लास्ट में ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एजुकेटेड हों। देखिए, अब साइबर सिक्योरिटी केवल एक फैंसी वर्ड नहीं रह गया। साइबर सिक्योरिटी इज समथिंग, इट इज नीडेड। जैसे अपन कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान, बड़ी हिंदी में पुरानी कहावत है, ये आदमी की जरूरत है। तो देखिए, हम डिजिटल युग में रह रहे हैं, हम लोग 10 रुपए का गोलगप्पा भी फोन पे का पेमेंट करके करते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब हमारी डिपेंडेंसी साइबर डिवाइसेस पे हो गई है, डिजिटल डिवाइसेस पे, तो रोटी कपड़ा मकान और साथ साथ डिजिटल एजुकेशन भी हमारी एक बेसिक नेसेसिटी होगी। तो सबसे यही मैं बोलना चाहूंगा, मेरा मैसेज इसमें कि आप अपने आप को एम्पावर करें। देखिए, इंतजार मत कीजिए कि कोई आपको आके सिखाएगा। स्टार्ट लर्निंग एंड गिव योर नॉलेज टू द पीपल हु आर डिप्राइव्ड इन द सोसाइटी। क्योंकि आज मैं बात करूं, एक ऑटो वाला है, ही ऑल्सो यूज अ मोबाइल, ही ऑल्सो यूज अ QR कोड टू टेक द पेमेंट्स, बट ही इज नॉट एजुकेटेड टुवर्ड्स द डिजिटल एजुकेशन। तो आपके पास अगर कुछ नॉलेज है तो प्लीज शेयर। आप अपने घर में जो बाई आती है, आप उसको बताइए, आपके ड्राइवर को बताइए, बच्चों के छोटे बच्चे हैं, दे डोंट नो, 4th-5th क्लास में आज बच्चे मोबाइल लेने लग जाते हैं, तो आप उनको भी बताइए कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू नो द बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही तरीके से बताया कि डिजिटल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडेज एरा। टू नो मोर अबाउट डिजिटल एजुकेशन आप ये पॉडकास्ट पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।